જેડીએસ ને 30 જેટલી બેઠકો અન્યને 5 જેટલી બેઠકો મળતી શરૂઆતી વલણમાં હાલ તો દેખાઈ રહી છે। એટલે કે અહીંયા સમજવું પડશે કર્ણાટકની એ જમીની પરિસ્થિતિ, કેમ કે 1985 થી કર્ણાટકની જનતાનું આ જ પ્રકારનું વલણ રહ્યું છે કે સત્તામાં રહેલી પાર્ટી પરિવાર જીતતી નથી અને અત્યારે પરિવાર એ જ વલણ અહીંયા પરિવર્તિત થતું દેખાઈ રહ્યું છે। એટલે કે સૌથી મોટો સવાલ હતો કે પુનરાવર્તન થશે કે પરિવર્તન, તો ફરી એકવાર પરિવર્તન પર કર્ણાટકની જનતાનો દારોમદાર હોય તેવું સ્પષ્ટપણે શરૂઆતી વલણમાં લાગી રહ્યું છે। 224 કુલ બેઠકો છે। શરૂઆતી વલણ તમામ બેઠકોના આવી રહ્યા છે। કોંગ્રેસ 113 બેઠક પર, ભાજપ 76 બેઠક પર, જ્યારે કે જેડીએસ પણ 30 જેટલી બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। અન્યને પણ 5 બેઠકો મળી રહી છે। તો આપને જણાવી દઈએ 5 કરોડ 13 લાખ જનતા અને આ જનતાનો જનાદેશ ઈવીએમમાં સીલ થયો હતો 10મી તારીખે। ધીમે ધીમે ઈવીએમ ખુલી રહ્યા છે। જનતાનો જનાદેશ શું છે એ સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે અને ચૂંટણીના પરિણામના વલણમાં હાલ તો કોંગ્રેસ સરકાર બનાવતી દેખાઈ રહી છે। साहब हमारे को बहुत खुशी हो रही है, जो हमारी मेहनत थी अल्लाह उसका रंग लाया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट को बदलकर एसी श्रीनिवास साहब को जिताई है। कांग्रेस पार्टी आना जरूरी था क्योंकि गरीबों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, गरीबों को साथ देने वाली पार्टी है। एसी श्रीनिवास साहब को लीडिंग मिलना ही है क्योंकि इतना मेहनत भी किए हैं, दुआएं भी किए हैं और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के पार्टी वर्कर्स जो मेहनत किए हैं ना, इसका नतीजा अल्लाह हमारे को जरूर देना चाहिए। The hard work of each and every karyakarta and each and every leader has given returns today. We have been in the ground since last 5 years. May it be COVID or any other price hike. Are you seeing how people are suffering? They are done with BJP. They are going to throw them out. The other BJP leaders say it is the people's voice, and today people will definitely give mandate. We will come with thumping majority. This is what we are already seeing. We have already crossed our magic number 115, and this is going to be our victory, and we are all very happy. See, all the MLAs, they are there in their own constituencies. Once they receive the winning certificate, yes, they will all come here because we have always worked together. We believe in collective leadership, so we are going to even celebrate the victory together. That is the reason we have called all of them to come over here. તો કર્ણાટકના મહાસંગ્રામમાં આજે પરિણામનો દિવસ શરૂઆતી વલણ સામે આવી રહ્યો છે। 2 કલાકનો સમય વીતી ચૂક્યો છે અને પરિણામમાં 113 બેઠક પર કોંગ્રેસ આગળ ચાલી રહી છે, 76 બેઠક પર ભાજપ, જ્યારે કે જેડીએસ 30 બેઠક પર આગળ ચાલી રહી છે। અન્યને 5 બેઠકો મળતી શરૂઆતી વલણમાં દેખાઈ રહી છે। જો કે ધીમે ધીમે પરિણામ સ્પષ્ટ થશે અને ખબર પડશે કે આખરે કોણ સત્તામાં આવે છે, પરંતુ શરૂઆતી વલણ પ્રમાણે અત્યારે તો કોંગ્રેસ બહુમતી સુધી પહોંચી ગઈ છે અને બહુમત સાથે કોંગ્રેસ સરકાર બનાવશે એવું સ્પષ્ટપણે લાગી રહ્યું છે। એટલે કે રાहुल गांधी थी लઈને प्रियंका गांधी, सोनिया गांधीनी एक रेली भारत जोड़ो यात्रा जणे कर्नाटक पर सौથી વધારે ફોકસ કર્યું હતું એને પણ સફળતા મળતી દેખાઈ રહી છે। અને વધુ માહિતી સાથે અમારા સંવાદદાતા જયપાલ શર્મા જોડાઈ ગયા છે, સાથે રાજકીય વિશ્લેષક રજનીકાંત સોની પણ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે। પહેલા તો આખરે કર્ણાટકની ધરા પરથી શું કે समाचार सामने આવી રહ્યા છે, जयपाल પાસે જઈશું। जयपाल, सीधे आपके पास आते हैं। शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने मिली है, मगर अभी क्या कुछ सामने आ रहा है? कांग्रेस बहुमती के नजदीक पहुंचती शुरुआती रुझान में। ये देखिए, जो मतगणना को शुरू हुए लगभग 2 घंटे का वक्त हो चुका है और इस 2 घंटे के अंदर में पल पल बदलती तस्वीर है। अभी से थोड़ी देर पहले जो है कांग्रेस 118 सीटों पे आगे बढ़ रही थी, लीड कर रही थी, लेकिन उसके बाद तस्वीर बदल गई है। अभी कांग्रेस जो है 107 सीटों पे आगे है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों पे आगे है। जनता दल सेकुलर जो कि 17 सीटों पे आगे चल रही थी, अब वो 27 सीटों पे आगे है। यानी कि अभी कोई भी स्थिति जो है, तस्वीर जिसको हम कहें, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
तस्वीरें बदल रही हैं। मेरे को लगता है कि लगभग 12 बजे तक का वो वक्त होगा जब तस्वीर जो है थोड़ी और साफ हो जाएगी। हाँ, इतना तय है कि शुरुआत से ही कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और वो लगातार बढ़त को बनाए हुए है। कांग्रेस के खेमों में जो है लगातार खुशी का इजहार शुरू हो गया है। लोग इस बात को मानने लग गए हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त मैं दफ्तर में मौजूद हूँ बेंगलुरु के, और यहाँ पर जो है 2 केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और शोभा करंदलाजे, ये दोनों इस वक्त कार्यालय के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ ना हो जाए तब तक उस पर बात करना उचित नहीं है। बहुत ज़्यादा उल्लास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा निराशा भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ता यहाँ जमे हुए हैं, लगातार यहाँ समर्थकों की भीड़ भी है और वो लगातार जो तस्वीरें बदल रही हैं, जो आंकड़े बदल रहे हैं, उसके तरफ बहुत रुचिकर भाव से देखते जा रहे हैं। जी बिल्कुल से आपके पास आती हूँ जयपाल, मगर जिस तरह से सिच्युएशन अभी शुरुआती વલણમાં સામે આવી રહી છે તેને લઈને હવે આંકલન કરવું પણ જરૂરી છે, એટલા માટે જ આપણી સાથે રાજકીય વિશ્લેષક પણ જોડાયેલા છે રજનીકાંતભાઈ. રજનીકાંતજી, સીધા આપની પાસે આવીશું. આપણે જોયું છે કે રાજસ્થાનની જેમ કર્ણાટકમાં પણ 35 વર્ષથી સતત પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાય છે. સત્તામાં હોય છે એ પાર્ટી ફરી એકવાર નથી આવી શકતી. આ વખતે મોટો પડકાર ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે પણ એ જ હતો, પણ પૂરી તાકાત લગાવી દીધી હતી. લાગતું હતું કે કંઈ આ વખતે ચેન્જ થશે, પરંતુ શરૂઆતી વલણ જે રીતે સામે આવી રહ્યા છે, શું લાગી રહ્યું છે આપને? બિલકુલ, મેં કહ્યું હતું આપણી જે દિવસે ઇલેક્શન પહેલા જ્યારે એક્ઝિટ પોલ આપણે રજૂ કર્યા હતા ત્યારે એમાં આપણે બીજેપી ને સીટો વધારે આપી. મેં 3 વસ્તુ કહી હતી. કોંગ્રેસ જીતશે, નંબર 1. નંબર 2 કે બંને વચ્ચેનો વોટનો પર્સન્ટેજ કમસે કમ 4 થી 5% રહેશે અને ફૂલ મેજોરિટી આવશે. આ ત્રણેય વસ્તુ થઈ રહી છે. હાલ સુધીમાં એવું દેખાઈ રહ્યું છે કે કોંગ્રેસ ફૂલ મેજોરિટી લઈ અને કોંગ્રેસ એક સારી લીડ લઈ રહી છે. 112 ઉપર આગળ દેખાઈ રહી છે અને મને એવું લાગે છે કે કોંગ્રેસ 120 પર ઉપર જશે. જે આપણે શરૂઆતી વલણમાં જોઈશું તો લિંગાયત વોટ, ભાજપાની જે મજબૂત મત બેંક છે ત્યાં મોટું ગાબડું પડ્યું છે અને એના મોટા ભાગના સારા એવા મત કોંગ્રેસ લઈ રહી છે અને સીધો બે વચ્ચેનો મુકાબલો છે, ટ્રાયેન્ગ્યુલર મુકાબલો નથી. એટલે એ પણ વસ્તુ ફરક પડી રહી છે કે બંને વચ્ચેનો સીધો છે પણ કોઈ કાંટાની ટક્કર નથી લાગી રહી. કોંગ્રેસ બીજેપી કરતા કમસે કમ 40 જેટલી સીટોનું અંતર બનાવી અને એક મજબૂત લીડ લઈ रही है, અને મેજોરિટી તરફ આગળ વધી રહી છે અને કોંગ્રેસ હવે एक्शन में પણ દેખાઈ રહી છે. बिल्कुल थी रजनीकांत भाई, आपकी पास से पण आऊं छूं, पण जयपाल, अगर हम देखने जाएं जिस तरह की परिस्थिति अभी शुरुआती रुझान में सामने आ रही है, 40 सीट्स का जो अंतर है, क्या भारतीय जनता पार्टी वो पार कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल है. और हमने देखा है कि कैसे कर्नाटक में कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था. उनके कार्यकरों ने कल शाम से ही वो खुशी का माहौल देखने मिल रहा था. सेलिब्रेशन वहां पे चालू होगा क्योंकि 113 बैठक पे बढ़त मिल रही है. जी देखिए, कर्नाटक में जो है जादुई आंकड़ा 113 का है. फिलहाल अगर अब हम अभी के रुझान की हम बात करें तो उससे कांग्रेस 3 अंक पीछे है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पीछे है. तो भारतीय जनता पार्टी को हालांकि अभी जो है काउंटिंग चल रही है और इसके अंदर में कई तरह के राउंड्स होते हैं, तो जब तक 10 राउंड की वो काउंटिंग ना हो जाए तस्वीर बहुत ज़्यादा साफ नहीं होती है. इसलिए तब तक तो ज़रूर इंतज़ार किया जाना चाहिए. लेकिन फिर भी अगर हम मान लें कि कांग्रेस जो है सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है, तो फिलहाल के जो रुझान है वो 110 पे दिखा रहे हैं. जनता दल सेकुलर का जो है वो 27 दिखा रहे हैं. और अगर हम इसी को नतीजा मान लें तो इस परिस्थिति में कांग्रेस को वो बाहर से मदद लेने की आवश्यकता पड़ जाएगी. और यही कर्नाटक की राजनीति है कि अचानक एक छोटी सी पार्टी जनता दल सेकुलर, जिसके पास बहुत ही सीमित सीटें होती हैं, वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है. हालांकि जिन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ ये काफ़ी जल्दबाजी है. जब तक रिजल्ट पूरी तरह से सामने में नहीं आते तब तक ये सारी बातें एक कयास से ज़्यादा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए मुझे को लगता है कि रिजल्ट की जब पूरी तरह से सामने में आएंगे तब स्थिति स्पष्ट होगी कि कौन कितने पे आ पाया. हो सकता है कि कांग्रेस अगर 113 के आंकड़े को पार कर लेती है तो उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी. उस स्थिति में हमें देखना होगा कि कांग्रेस को जो सीटें मिली हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी के हिस्से की मिली हैं या उसने जनता दल सेकुलर को कमजोर किया है. क्योंकि थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस 118 पे लीड कर रही थी उस वक्त में जेडीएस जो है के पास महज 17 स्थानों पर लीड थी. लेकिन अभी हम देखते हैं कि जेडीएस जो है 27 स्थानों पर लीड कर रही है और कांग्रेस का आंकड़ा जो है घट करके 107 पर आ गया है.
बिल्कुल से जयपाल, रिजल्ट जो काउंटिंग हो रही है उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए। कौन कौन से जोन का जो आंकड़ा है वो सामने आ रहा है, अभी कौन से जोन की जो 6 जोन की हम जो बात करते हैं उसमें कहाँ पे काउंटिंग, कहाँ की काउंटिंग अभी सामने ज्यादा आई है, क्या कुछ सामने आ रहा है जोन वाइज अगर हम बात करें तो? देखिए, जोन वाइज अगर बात करें इस वक्त में सभी जगह से मिले जुले आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए इस वक्त इसमें उसको बाइफरकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन माना जा रहा है कि जो जनता दल सेक्युलर है। बिल्कुल बिल्कुल जयपाल, आपके पास आती हूँ। हाल प्रतिक्रियाओं दौर पर शेयर થઈ ગયો છે।